السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم جی کون بھائی جان؟ جی حضرت، ہم رانچی سے بات کر رہے ہیں۔ رانچی؟ جی اچھا اچھا، آپ کا مسلک؟ مطلب یہ ہے کہ ایک حضرت ہم کو آپ کا نمبر دیا، بولے کہ ان سے بات کر لیجئے۔ میں مسلک پوچھ رہا ہوں، مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ارے بھیا وہاں بھیا 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 آرام سے۔ ہاں میں مطلب نہیں پوچھ رہا ہوں، ہاں مسلک پوچھ رہا ہوں، آپ کی جماعت پوچھ رہا ہوں۔ میرا مسلک یہ ہے کہ ہم وہاں بھی ہیں۔ اچھا اچھا، وہابی ہیں؟ جی ہم سنے یہ کہ آپ وہابی تھے، اب سنی ہو گئے۔ جی دیکھیے، میں دیو کے بندروں میں تھا پہلے، میں جی کوئی بھابھی بھی نہیں تھا، میں دیور تھا جی کیونکہ میں مرد ہوں، نہیں، ایک حضرت میں بھابھی کہتا ہوں۔ رات میں ایک حضرت کال کیا ہے نا، بول رہے تھے کہ آپ کا نام لے کے کہ پہلے وہابی تھے، اب سنی ہو گئے، تو ہم بولے کہ وہ تو اپنا اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چیز بنے۔ میں ایسے کر کے بولوں سیدھا سیدھا، میں پہلے گستاخ رسولوں میں تھا، اب وفادار رسولوں میں۔ تو آپ وہابی کو کیسے بول سکتے ہیں گستاخ رسول کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہم ثابت کریں گے۔ کچھ پڑھے لکھے ہو آپ؟ جی ہے، ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہاسٹل میں رہ کے۔ اچھا، مدرسے میں پڑھتے ہو؟ جی اچھا، تو مدرسے کے بچے تو ہاسٹل میں نہیں رہتے ہیں؟ کیسے نہیں رہتے ہیں حضرت؟ یو پی میں ہم رہتے ہیں۔ یو پی میں رہتے ہیں؟ جی تو مدرسہ وی آئی پی ہے کیا؟ یہ وی آئی پی تو نہیں ہے، میں نے چھوٹا موٹا مدرسہ ہاسٹل کا خرچہ کون دیتا ہے؟ آپ کے والد صاحب؟ ہے۔ جی میرا والد صاحب دیتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو یار اس میں تو بڑا مہنگا پڑتا ہوگا آپ کو؟ جی اس میں تو بڑا مہنگا پڑتا ہوگا آپ کو، ہاسٹل کا کرایہ کتنا ہے؟ تو وہ تو ہم لوگ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ اپنا کتنا دے اس کو۔ تو ہم لوگ اس کو سالو کرتے ہیں۔ آپ جس چیز کا ہم کو پوچھ رہے ہیں اس کو بتائیے نا۔ میں بھائی اتنا روپیہ خرچہ کر کے جو تعلیم حاصل کر رہے ہو، اتنا پیسہ جو اپنے والد صاحب کا برباد کر رہے ہو، میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے بچانے کی ترکیب بتاؤں گا آپ کو کچھ۔ آپ کتنا روپیہ دیتے ہیں ہاسٹل والے کو؟ ہاسٹل والوں کو ہم مہینہ 500 روپیہ دیتے ہیں۔ بس صرف 500 روپیہ؟ صرف 500، جتنا وہاں رہے گا اتنا ہی دیں گے۔ اچھا اچھا، تو پھر ویسے ہی روم ہوگا یار، ویسے ہی کسی کا ہاسٹل نہیں ہوگا بالکل۔ ہاسٹل میں تو 500 کا نہیں ہے بھاڑا۔ آپ بھی تو ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کیے ہوں گے؟ ارے میں نے تو ہاسٹل میں رہ کے نہیں کی ہے پڑھائی، مگر مجھے معلوم ہے کہ ہاسٹل کا بھاڑا بڑا مہنگا رہتا ہے۔ تو آپ کمرہ کی بات کر رہے ہیں، جو ہوٹل ہوتا ہے کمرے اس کی کا؟ بات کر رہا ہوں۔ کتنے لڑکے ہو کمرے میں؟ کمرے میں لگ بھگ 20 لڑکا رہتے ہیں۔ 20؟ ہاں تو 20 لڑکے ایک مہینے میں 500 جمع کر کے دیتے ہیں؟ ہاں، ہاں تو ایسے کر کے بولو نا یار، کیوں آدھی آدھی بات بتا رہے ہو؟ تو آپ کیا چیز پوچھے؟ آپ یہی نہ پوچھے کہ آپ کتنا دیتے ہیں ہاسٹل؟ حال ہے یہی ہیں عاطر بھائی۔ تو جناب آپ علماء دیوبند سے ہیں یا علماء اہل حدیث سے ہیں؟ علماء دیوبند ہے۔ علماء دیوبند ہیں؟ ہاں، تو کہاں کے مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ؟ یو پی کے مدرسے میں رہتے ہیں۔ مطلب یو پی تو بہت بڑی ہے، جی تو یو پی میں تو دیوبند بھی پڑتا ہے؟ دیوبند ہی پڑھتا ہے۔ ہاں یو پی میں دیوبند بھی پڑتا ہے۔ جیسے کیا بولتے ہیں، بنارس دیکھ رہے ہیں نا؟ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہاں، تو اسی سے آگے ایک بھدوہی ہے۔ ہاں بھدوئی ہے۔ ہاں، تو بھدوہی میں رہتے ہیں۔ اچھا اچھا، بھدوئی میں مدرسہ ہے؟ جی تو آپ مولویت پڑھتے ہیں؟
जी मौलाना लाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अरबी सोम में है। ये शोर कम करो यार, शोर कम कराओ। मदरसे में हो तो तुम अभी हॉस्टल में? नहीं, हम तो अभी घर में हैं। रांची में? जी, अच्छा अच्छा, तो मेरा नंबर आपको किसने दिया? वो हजरत बोले कि यूट्यूब में नूर नाम करके सर्च करो तो मिलेगा वही नंबर, हाँ इसीलिए हम बोले कि उनसे कॉल करना, मेरा नाम लेना। उनका नाम मोबिन नाम करके है, रांची से है। अच्छा अच्छा। तो वही रात को हमको कॉल किया और बता रहे थे कि यही सब का जो जो फिरका है यहाँ, वही फिरके का बात कर रहे थे। हाँ तो जनाब, मैं पहले आपके जमात में था, जी अब नहीं हूँ। जी हाँ, क्योंकि वहाबी देवबंदी ये सब के सब अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, अल्लाह वालों के दुश्मन हैं, जो भी अम्बिया औलिया हैं उनके दुश्मन हैं। हजरत आप तो कमाल जो जो कमाल रसूल पाक के लिए ये इनकार करते हैं, जिसको नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते, उन सारे कमालों को अपने घर के बुजुर्गों में तस्लीम करते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी खराबी है। सुनिए ना हजरत, सुनिए ना, पहले आप वहाबी को कैसे इस्लाम से निकाल दे रहे हैं? मैं आप थोड़ी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालोगे। कैसे निकालेंगे? ये बताइए, आप रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं? कैसे? जी करते हैं। अच्छा, करते हैं। जी, मतलब मेरी वजह से कह रहे हैं या वाकई? वालेकुम अस्सलाम। वहाबी का मसला में नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल को कैसे मोहब्बत नहीं करेंगे, आप ही बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ जनाब, क्या बोले? हम आपका वजह से नहीं बोल रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को मोहब्बत करते हैं। जो वाकई सच्चे दिल से करते हैं? जी, वाकई सच्चे दिल से अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, तो इसमें कोई भी दिखावा नहीं है? नहीं, काहे दिखावा रहेगा। माशाल्लाह, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो फिर आप जो है ना देवबंदियों में धोखे में हो, अनजाने में हो? बताइए, बताइएगा तब तो हम जानेंगे। जी जी बिल्कुल बताऊंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। जी और आपके जैसे लोग बड़े कम मिलते हैं उलमाए देवबंद में। जी हाँ, इतनी तसल्ली से और इतने प्यार से बात करने वाले। अपनी बात कह देना और दूसरे की बात सुनना, ये हर किसी के बस की बात नहीं जी जी है। जी, तो आप अपने वालिद साहब से भी मोहब्बत करते होंगे? बेशक। आप जिन उस्ताद से पढ़ते हैं उन उस्ताद से भी मोहब्बत करते होंगे? जी, माशाअल्लाह, चलिए ये एक जिससे मोहब्बत करता है इंसान, समझे, उसकी तारीफ करता है, तो आप अपने उस्ताद की तारीफ भी करते होंगे? करते हैं तारीफ। अच्छा अच्छा, करते हैं। अपने वालिदैन की भी तारीफ करते होंगे? जी, अच्छा अच्छा, तो हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की तारीफ करने वाले को बुरा क्यों कहा जाता है? आप ही ना बुरा बोल रहे हैं। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा, मैं तो अभी आप ही से पूछ रहा हूँ। मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा, ना आपको बुरा कहा। आप बोले ना कि वहाबी काफी रहे, ये है। मैंने आपको बुरा नहीं कहा अभी तक, अगर कहा हो तो बताइए। आप बोले कि वहाबी काफी रहे। मैंने अभी तक ना काफिर कहा है, ना गुमराह कहा है, ना बदमजहब कहा है। अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं है। जी, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं यार, अभी तो मैंने कहाँ कुछ कहा है। हाँ तो अभी तक बोलिए तो आप। मैंने, आपने भाईजान ये कहकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। मैंने तो अभी आपको कुछ बोला ही नहीं ना। सुनिए ना हजरत, आप बोले कि देवबंदी ऐसा होता है, या आप बोले ये बात, आप बोले कि नहीं, ये बता दीजिए हमको पहले। मैंने ये बोला था कि मैं पहले गुस्ताखे रसूलों में था, अब वफादार रसूलों में हूँ। हाँ ये बोला था मैंने यार, याद रखा करो। हाँ हाँ हाँ। मुझसे भी ज्यादा भुलक्कड़ हो क्या? मैं तो बोल ही जाता हूँ, आप भी बोल रहे हो। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह का भूल का बीमारी नहीं। हाँ, मैंने ये पूछा था आपसे कि आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, आपने कहा जी हाँ करते हैं। मैंने कहा आप अपने उस्ताद से मोहब्बत करते हैं, आपने कहा करते हैं। तो मैंने कहा रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं, तो आपने सब में पहले रसूल पाक के लिए बोला, फिर अपने वालिद के लिए बोला, फिर उस्ताद के लिए बोला। हाँ जी मैंने कहा माशाअल्लाह, मैंने आपकी इस अदा पर माशाअल्लाह भी कहा था। जी जी हाँ, क्योंकि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है।
जी तो मैंने पूछा कि आप अपने उस्ताद की तारीफ भी करते होंगे, अपने वालिद की भी तारीफ करते होंगे, है ना। जी। मैंने ये नहीं कहा कि तुम गुस्ताखे रसूल हो, तुम काफिर हो, ये है वो, मैं नहीं कहता हूँ यार, मैं सामने वाले से कहलवाता हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ, तो ये बताइए, जैसे अगर आप थानवी जी से मोहब्बत करते हैं हाँ, तो थानवी जी की तारीफ करते होंगे। मौलाना कासिम नानवी। मौलाना कासिम नानोतवी। आप थानवी बोले कि नानवी बोले? मैंने थानवी जी बोला है, थानवी जी। थानवी जी। हाँ, जो थाना भवन के रहने वाले अशरफ थानवी थे ना। जी जी जी। तो आप पूरा नाम बोलिएगा हजरत, तब न पता चलता है। अरे आप तो देवबंद में पढ़ते हैं, देवबंद के मदरसे में पढ़ते हैं, तो आप तो नाम से ही पहचान जाएंगे। सुनिए ना हजरत, ननौतवी हम जी, गंगोही जी, लोग अमैठवी देवबंद के जी, मदरसे, थानवी जी। सुनिए ना, देवबंद का मदरसा में पढ़ते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि देवबंदी। हम लोग लखनऊ का स्टूडेंट है। हाँ, अच्छा, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं। नहीं, लखनऊ जो आती क्या बोलते हैं, नदवा। नदवा का स्टूडेंट। अच्छा, नदवा के स्टूडेंट हैं। जी। अभी तो आप ये हरदोई का इसके भदोई के बता रहे थे। तो 1 साल है मेरा भदोही में, उसके बाद लखनऊ का आती है। लखनऊ का आती है। आती मतलब खैर, गुस्सा मत करना, बात करते रहो, जिसको भी बात करनी है ना। आप ही बात कीजिए, आपके अंदर। सुनिए ना हजरत, जो टॉपिक में फोन किए वही टॉपिक में आप बात कीजिए ना। तो आप तो टॉपिक मेरा घर, मेरा फैमिली सब कहाँ आप बात कर रहे हैं? तो टॉपिक आप चुन लीजिए, फिर जिस टॉपिक पे बात करना हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, और सुनिए आप ना, कह रहे थे कि तुमने कैसे गुस्ताखे रसूल कह दिया, या कैसे गुस्ताखे रसूल कहते हो, तो मैं वो साबित करने जा रहा था। मैं वही साबित करूं। टॉपिक यही है ना हजरत, के जो क्या देवबंदी बोलते गुस्ताखे हैं। रसूल कैसे हैं। हाँ, हाँ, तो बस सुनते रहिए। यही चीज ये को आपको बताइए। हाँ। हाँ हाँ, ये बताइए भाईजान, अगर मैं आपके वालिद साहब को आपके सामने बुरा भला कहूँ तो आप क्या सुनोगे। मारेंगे तो सुनने का बात बोलते हैं। हाँ, सही बात है, यही है मोहब्बत का तकाजा। क्या है। मोहब्बत का तकाजा। हाँ, यही है मोहब्बत का तकाजा। हमारे वालिद को हमारे सामने कोई बुरा बोलेगा हाँ। तो हम भले ही कैसे हैं, कितने ही कमजोर हैं, मगर अपने वालिद के लिए नहीं सुनेंगे, अपने उस्ताद के लिए नहीं सुनेंगे, अपने किसी करीबी के लिए नहीं सुनेंगे, जवाब दे देंगे। जी। हाँ, और ये गुस्सा बड़ा चालाक होता है जनाब। जी जी। जो आपने कहा ना कि मारेंगे, समझे। तो ये लफ्ज बड़ा कठिन है, कहना बड़ा आसान है, मगर करना मुश्किल। आपसे एक मिनट, कोई बड़ा आदमी चला गया ना तो पैखाना निकल जाएगा। हजरत बात वो नहीं। आपके गांव का कोई प्रधान है, कोई बड़ा आदमी है, कोई क्या क्या तुम्हारे यहाँ बनते हैं। सुनिए ना, कोई मुखिया है, हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी है ना। हाँ, वो आ जाए, मेरा अब्बू अगर गलत में ना रहे ना तो उनको भी मारेंगे हम। प्रधानमंत्री का नाम मत लो, वरना जेल में बंद कर देगा वो। हाँ, ये बात तो है। ये बात है। यही तक रहने तो, नीचे नीचे ठीक है, मेरे तक रहने दो, प्रधानमंत्री तक मत पहुंचो अभी। प्रधानमंत्री के लिए जुबान मत खोलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री के आगे पीछे तुम्हारे जो बड़े बड़े ये लोग हैं ना, उसके आगे पीछे फिरते हैं दुम दबा के। वो कहता थाली बजाओ तो थाली बजाते हैं, वो कहता ताली बजाओ तो ताली बजाते हैं, वो कहता मोमबत्ती जलाओ तो मोमबत्ती जलाते हैं, वो कहता मेरा बर्थडे मनाओ तो वो बर्थडे मनाते हैं। हाँ जी जी। हाँ, तो अभी इतना ऊपर मत पहुंचो, क्योंकि तुम्हारे जो बुजुर्ग है ना, वो उसके पीछे पीछे रहते हैं, उसकी जूतियां सीधी करते हैं। हाँ, बात तो ये है। हाँ, बात तो यही है ना। हाँ, तो गलत मत बोलो और आगे भी मत बोलो, ज्यादा सोच समझ के बोला करो। इंशाल्लाह आप नहीं बोलेंगे। जी जी, हाँ, अब मत बोलना। जबान है तो फिसल जाता है। हाँ, मत फिसलाओ। खैर, जबान फिसलने से कुछ भी फिसल सकता है। बहरहाल, ईमान के लिए फिसली तो बर्बाद जी, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना पड़ेगा। जी। आपने कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये बताइए कि आपके उस्ताद के लिए, जिसने आपको इल्म दिया है जी, उसके लिए कोई बोलेगा तो बर्दाश्त करोगे। नहीं, नहीं करोगे। आपके नबी के लिए अगर कोई बोलेगा गलत तो बर्दाश्त करोगे। नहीं। नहीं ना। नहीं। तो जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी की शान में कोई तौहीन करे आपके सामने आके, तो क्या आप सुनोगे। नहीं, कैसे सुनेंगे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई तौहीन करने वाला, चाहे वो जर्रा बराबर ही क्यों ना हो, जी तौहीन करने वाला शख्स मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। काफिर हो जाएगा। सच सच बोलो यार, घबरा के नहीं। नहीं, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शान में गुस्ताख करते हो, ईमान से खारिज। सही में? जी, कोई शक? कोई शक नहीं इसमें। माशाअल्लाह, सही बोले। तो मैं तुम्हारा समझ लो इम्तहान ले रहा था, ऊपर नीचे करके देख रहा था कि कहाँ तक हो। ठीक है, जी आपने सही बोला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी तौहीन करने वाला शख्स काफिर है, जी ईमान से खारिज है। वो जी मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफिर हो जाता है, जहन्नम में जलने का उसका समझ लो सिस्टम चालू हो गया। जी अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अगर उलमाए देवबंद से इतनी ही मोहब्बत रखते हैं, जी तो अगर मैंने ये कह दिया कि तुम्हारे मौलाना कासिम नानोतवी, अच्छा मौलाना कासिम नानोतवी को जानते हैं? जी जानते हैं, देखे तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अरे वो बहुत जमाने का गुजर गया है, तो हाँ कहाँ जो से देखोगे यार। हाँ तो अगर उसके लिए मैं आपके सामने आके ये बोलूं कि मौलाना कासिम नानोतवी का इल्म या रशीद अहमद गंगोही का इल्म या थानवी जी का इल्म यानी मौलाना अशरफ अली थानवी का जी या खलील अहमद मैठवी का इल्म ऐसा है जैसा कि जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों का, तो क्या वाकई मेरी बात को सच मान लोगे? ऐसा ही है? रुकिए रुकिए, लाइन में रहिए तो सर, मेरा दूसरा फोन है। अरे भैया तुम भी शर्म का करते हो। क्या हुआ भाईजान? एक कॉल आ रहा, रुकिए ना लाइन में। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। हाँ? किसके जरिए से पहुंचाओगे? जी हजरत बोलिए। अच्छा, हजरत बोलिए हजरत। हाँ, तो मैंने कहा कि आपके ये जो चार अकाबिर हैं, अगर मैं ये कहूँ कि आपका या आपके इन चार अकाबिर का इल्म ऐसा है जैसा कि जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को हासिल है, तो क्या जी आप मान लेंगे? नहीं, कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे? अच्छा, नहीं ये माने। जो मैंने बोला है ये तौहीन की नीयत से बोले, तौहीन की है ऐसा बोल के, या उनकी तारीफ की है? आप तौहीन का नियत से बोल रहे हैं। नहीं, मैं ही चाहे बोल रहा हूँ चाहे कोई और बोले, तो इस तरह का कहने वाला तौहीन ही करेगा। इस तरह की बातें तारीफ में नहीं कही जाती हैं। क्या तारीफ में भी कही जाती है? तारीफ की नीयत से भी बोला जाता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं। तौहीन ही होगी ना। जी तो आपने मुझे कैसे कहा कि आप तौहीन की नीयत से बोल रहे हैं? अगर तारीफ की नीयत से बोलते हो तो जरा सबूत दो। नहीं, तारीफ तो नहीं है। हाँ, तारीफ नहीं है, तो आपको सीधा यही कहना चाहिए कि नहीं, ऐसा बोलने वाला शख्स तौहीन कर रहा है जी और ये बातें तौहीन है। जी तो इस तरह अगर मैं तौहीन करूंगा तो मेरी मोहब्बत आपके दिल में रहेगी? नहीं नहीं रहेगी ना। नहीं, किस लिए, क्यों? इसलिए कि आप मेरा जो अकाबिरे हैं उन लोगों के तौहीन कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मेरी मोहब्बत आपके दिल में नहीं रहेगी। अगर कुछ होगी भी तो वो भी निकल जाएगी जी और आप मुझे से फिर नफरत करने लगेंगे। जी इसीलिए हम उलमाए देवबंद से नफरत करते हैं, क्योंकि आपके मौलाना अशरफ अली थानवी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के इल्म गैब की तरह बताया। माज़अल्लाह। जब मिसाल दे के बताइए। मिसाल दे के नहीं, हकीकत करके सुनाता हूँ। जी बताइए। मौलाना अशरफ अली थानवी की एक किताब का नाम सुना होगा आपने, हिफ्जुल ईमान। हिफ्जुल ईमान। जी जी सुने हैं, मामू पढ़ा का बताए थे कि एक किताब है। मामू बताए थे तुम्हारे? जी तुम्हारे मामू बरेलवी हैं कि देवबंदी हैं? वहाबी भी है। वो भी वहाबी हैं? जी अच्छा अच्छा, तुम देवबंदी बोला करो, तुम देवबंदी बोला करो, अपने आप को वहाबी अहले हदीस बोलने लगे हैं बाबा ना। आपको रंग चेंज हो गया है। जी हाँ, सिस्टम चेंज हो गया है। तो वैसे तो सभी जो है वो मौलाना इस्माइल देहलवी के जो है चाहने वाले हैं, चाहे वो वहाबी हो या देवबंदी। जी बहरहाल, तो जब आपने इसका नाम सुना है तो आपने ये किताब पढ़ी भी होगी। नहीं नहीं, पढ़े तो नहीं है अभी तक। अच्छा, पढ़े नहीं है। आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है 96 089। तो ये जिस पे आपने कॉल किया है इस पे मुझे आप व्हाट्सएप करो, ठीक है? मैं इस पे भेज दूंगा
जी हम अपना नंबर ही, तो मेरा दूसरा सिम है, तो उसमें हम जो मेरा व्हाट्सएप चलता है उसी में हम सेंड कर देंगे आपको। चलो कर देना। तो मैं आपको वो इबारत पढ़ के बताऊं, जी पढ़िए। उसमें लिखा गया है माज़अल्लाह कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैब या मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है माज़अल्लाह। तो क्या हमारे नबी का इल्म, आपके नबी का इल्म ऐसा ही है जैसा जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों का? नहीं। नहीं ना? नहीं। तो ये तौहीन ही की है ना? जी। तौहीन करने वाला काफिर है ना? जी। हाँ। अब ये तौहीन मौलाना थानवी जी ने की है और किताब के जरिए से की है और आज तक की जा रही है। तो थानवी जी का इल्म और थानवी जी, मैं क्या क्या बोलूं, अब आपको मानना पड़ेगा ना थानवी जी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह था। हम तो नहीं बोल सकते वैसा। हाँ, आप नहीं बोल सकते क्योंकि छोटों का यह हक नहीं बनता कि अपने किसी बड़े को ऐसा बोले। जी। तो फिर थानवी जी ने यह ऐसा कैसे बोल दिया? थानवी जी का हक कहाँ से बन गया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा बोलें, ऐसा लिखें? तो थानवी जी ने ये जो तौहीन की है, तो ये तौहीन है या नहीं? जी तौहीन है। अच्छा, तौहीन है तो अंबिया किराम की शान में जर्रा बराबर तौहीन करना ये कुफ्र है या नहीं? कुफ्र है। हाँ, तो कुफ्र है तो थानवी जी काफिर हुए या नहीं? हाँ भाई, हम तो ऐसा हम बोल तो दिए कि हम किसी को काफिर नहीं बोल सकते, अब इसलिए ऐसे कैसे नहीं बोल सकते हैं? अभी तो आप थोड़ी देर पहले तो आप बड़े बड़े सुनिए ना हजरत, पहले मेरा बात को भी तो सुनिए। आपने ये कहा था ना कि तुम कैसे काफिर कहते हो, कैसे काफिर बता देते हो। तो मैंने नहीं कहा है बल्कि अब आपने ही खुद कहा है कि हाँ, रसूल पाक की शान में तौहीन करने वाला शख्स काफिर है। मेरा बात को आप पहले सुनिएगा तब तो। गुस्सा करने लगे हो अब? नहीं हजरत, हम गुस्सा काहे करेंगे? अच्छा, इसमें कोई गुस्सा करने की बात है? बता दीजिए। अच्छा, चलिए। आप भी जान रहे, हम भी जान रहे कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर को भी काफिर कहना गुनाह है। चलिए सबूत पेश कीजिए। आप मानते हैं कि नहीं इस चीज को? हमको बता दीजिए पहले। नहीं, हम तो ये मानते हैं कि जो जिस वक्त जैसा होगा वैसा ही कहा जाएगा। अगर कोई काफिर है तो उसको काफिर ही कहा जाएगा, कोई मुसलमान है तो उसको मुसलमान ही कहा जाएगा। रुको, बताओ उसको, हम जवाब देते हैं। तुम का है जवाब के साथ देंगे, बताओ ना। कुछ नहीं सकोगे, कुछ नहीं सकोगे। बता के लो तो बता क्या बात था, बता। रुकिए, हाँ क्या बात? वो नहीं कहा। हाँ भैया बोलिए। इस्लाम में रंग नस्ल। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ भैया, आप कॉल नहीं उठा रहे हैं, क्या बात? अरे भाई, आप कॉल करके कट कर दे रहे थे, कॉल कर रहे थे, कट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, कट जा रहा था बार बार, ऐसा थोड़ी कोई बात। ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ही बात है। ईमानदारी के साथ बताओ, खुदा की कसम खा के। तो हम इतना कॉल करेंगे, जब हमको काट नहीं था तो इतना कॉल करेंगे। नहीं, खुदा की बताइए क्या दिक्कत क्या कि आपने कट नहीं किया था। अरे यार, दिक्कत क्या है बताइए। नहीं, क्या बात है मेरा भाई, हम आपसे दिक्कत है यार, कॉल आप कर रहे हो, मुझे थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत तो आपको है कोई। क्या मेन बात करना है, यही सब बात करना है। तो वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, क्या हाल है? सब ठीक ठाक, अपना बताइए। हेलो। हाँ जी जनाब। हाँ तो बोलिए, क्या बात क्या हो रहा था हम आपसे? भाई, हम आपसे जो बात हो रही थी वो छोड़ दीजिए। आप कौन है पहले ये बताइए। आपने पहले भी मैंने पूछा आपसे। तो मेरा नाम फैयाज है, फैयाज अंसारी, ठीक है? फैयाज अंसारी आपका नाम है? जी। आप मुफ्ती हैं, मौलवी साहब? नहीं, हम कुछ नहीं है, हम मुसलमान हैं। और नहीं है तो रहने दीजिए, मैं बात नहीं करूंगा, उनसे बात कराओ। अच्छा। तो मतलब आप बहुत बड़े आलिम हैं? नहीं, और हम कुछ यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मैंने कब कहा मैं आलिम? हाँ तो फिर काहे हमसे बात नहीं कीजिए? भाई से बोला हो तो बताइए। आप बताइए ना, क्यों हमसे बात नहीं कीजिए? नहीं, वैसे ही नहीं कर। आप खुद को क्या समझ पा रहे हैं आप? नहीं मतलब खुद को क्या समझते हैं? बहुत बड़े आलिम हो जो आप मुझसे बात नहीं करोगे? गुस्सा मत कीजिए, आप भाई से ज्यादा जानते हो।
क्या हुआ? आप लोग का मौलाना का एक बात जो लोग बोलता है चिल्ला चिल्ला के दूसरे के मजहब का मजाक उड़ा के से ज्यादा इल्म है तुम्हें? वो सही है? हम्माद से ज्यादा इल्म है? आपसे ज्यादा इल्म है जी, बात कीजिए। हम्माद अच्छा मुझसे ज्यादा इल्म है, मुझसे ज्यादा है। आपसे ज्यादा इल्म है, आपसे ज्यादा इल्म है, बताइए आप। चलो कोई बात नहीं है। अब ये बताइए, अच्छा गुसल की जो सुन्नतें हैं वो बता दीजिए, गुसल की कितने सुन्नतें हैं? आप मेन बात कीजिए कि आपको मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आप गुसल की सुन्नतें बता दीजिए पहले। आपको बात करना था ना यहाँ की गुसल की सुन्नतें बता दीजिए, गुसल में सुन्नतें कितनी है? टॉपिक था यही ना, टॉपिक था कि वहाँ भी जो होता है वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है, यही बात था ना। अरे तो हम्माद ने साबित किया ना वो काफिर है। अरे यही थानवी ने खुद कह दिया, और थानवी को खुद काफिर कह दिया। आपसे सर्टिफिकेट लेना है हमको ना। अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपने खुद सर्टिफिकेट दे दिया। हम्माद ने बोला ना काफिर है। आप जैसे जाहिल इंसान जो खुद को इतना कुछ समझते हैं कि अगला से बात करने के लिए उसका इल्म पूछ रहे हैं, तो उससे बड़ा जाहिल इंसान कौन हो सकता है दुनिया में? अरे यार, हाँ, हम्माद जब तुम्हारे घर में पढ़ा लिखा बंदा है तो हम्माद ही बात करेगा ना। आखिरी खुतबा क्या था? आप इतना बस बता दो मुझे, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा क्या था? पहले तो तुमने जाहिल इंसान क्या था? आ गया बदतमीजी पे। खुतबा क्या था? अरे हम्माद, अरे हम्माद इसे समझा ले, इसे समझा ले, जानते हो, वरना हालत खराब कर दूंगा। अरे समझा, हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा देवबंदियों को। अरे जाहिल इंसान, मुसलमान होता है, देवबंदी बदतमीजी मत कर। देवबंदी अच्छा जमात में यही सिखाया जाता है, तुम तो कहते हो सब्र करो, ये करो, वो करो। अरे जाहिल कहीं के। जाहिल इंसान, हम मुसलमान हैं और कुछ नहीं है, हमको उससे ज्यादा होने की जरूरत भी नहीं है। चुतिया साला सुन्नी। अरे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, और हक से चलकर बोलता है, तू भी हमको सुन्नी मानता है। हाँ, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम सुन्नी हो, समझे? तुम मुसलमान है ही नहीं। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जब पढ़ोगे या सुनोगे कहीं ना, तो खुद ब खुद ये भरम निकल जाएगा कि तुम सुन्नी हो, कि वहाबी हो, कि शिया हो, कि क्या हो। समझ में आया ये बात? जब आखिरी खुतबा पढ़ोगे ना, जाहिल हो तुम लोग जाहिल हो, कुछ नहीं हो। अच्छा चल जाहिल ही होने दे। तुम लोग इतने जाहिल इंसान। देखो इस्लाम क्या था? इस्लाम का पैगाम ये है कि दुनिया में जितने भी लोग शांति से दुनिया सुनो। आखिरी खुतबा क्या था हम बताते हैं तुमको। दुनिया में जब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा क्या था? इस्लाम को हमने सरेआम कर दिया है, सभी लोगों के लिए कर दिया है। अच्छा, और इस्लाम में रंग, नस्ल और कबीला का कोई इख्तियार नहीं है। तो तुम हमको, हमें और तुम में फर्क करने वाला कौन होते हो बे? कौन होते हो तुम? अरे नबी ने बताया है फर्क। हाँ अच्छा, तो तुमने बताया है? किसने बताया? तुम्हारे अब्बू जी ने। अरे कल तक कहाँ थे ढोलकी साहब? मैं बताऊं, तूने अंसारी बताया, मगर तू अंसारी है नहीं। जाहिल इंसान, तुम बता दो। अंसारी है नहीं, मुझे तू झुलाया लग रहा है। अंसारी तो बड़े समझदार होते हैं, और अंसारी तो मददगार होते हैं। हाँ हाँ, तू जोहलाया है, जोहलाया। जवाब देने नहीं जान रहा था, हम दे रहे हैं। हाँ तू जोहलाया लग रहा है। हजरत अंसारी हुआ। हाँ वही तो हमको पता है, इतना इल्म है हम लोग को, अंसारी हुआ। अरे इन लोग को ना, इन लोग के पास मुद्दा ही नहीं है मुद्दा बात करने के लिए। इन लोग डरता है, इन लोग पूछोगे बात, इन लोग कुछ करेगा। इन लोग का किसी को आप नहीं बोल सकते हैं कि ईमान से निकाल देने के बाद। अरे ये कौन होता है बेटा? सुन ना भाई, तुम कौन होता है हमको सर्टिफिकेट देने वाला? हम बोलेंगे कि हम मुस्लिम है, तुम हमको बोल दोगे कि तुम काफिर हो, और तुम बोल दिए तो क्या हम काफिर हो गए? अरे खुद फरमा के गए हैं कि ऐसा दिन आने वाला है कि 73 फिरके होंगे, तो तुम भी वही फिरकों में से एक फिरका होगा रे। हम जन्नती हैं। हाँ तुम अपना सर्टिफिकेट बनवाइए होगे जन्नत से। हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम वफादार हैं। वैसा बात नहीं होता है, तुम अपने आप को दावा नहीं कर सकते हो कि तुम जन्नती हो गए हो। चल मुझे खाना खाने दे, चल जा आप तू। वैसा फिर हम गुस्सा में नहीं बात कर रहे हैं। आप ऐसा बात को बोल देते हैं कि हम जन्नती हो गए। आप कैसे दावा के बोल सकते हैं जन्नती हो गए? आप जन्नत का दावा कैसे कर सकते हैं? जन्नत मुसलमानों के लिए बनी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मीरास है जन्नत,
اور میراث پر اولاد کا حق ہوتا ہے, اور ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, مومن ہیں, سمجھا؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتی ہے نا. بھائی دیکھو, تھانوی جی کو کے گھاٹ آپ نے اتارا, میں نے نہیں. سنیے, حضرت آدم علیہ السلام کا جو امت ہے نا, یہ پورا دنیا ہے, انہیں سے پورا دنیا پیدا ہوا ہے, چاہے وہ ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, اس کا مطلب نہیں ہے. تو کیا سب جنتی ہے؟ اس میں سے وہ ڈھولکی آپ بھی ہیں. ڈھولکی خود کو تو جنتی بتا دوں, مگر کہاں ہے لکھا ہوا؟ کہیں لکھا ہوا بتا دیجیے کہ سارے ڈھولکی جنتی ہے. ارے آدم علیہ السلام کی جتنے امتی ان لوگ جنتی ہے, تو آپ تو ڈھولکی ہے نا. اور تمہارے دونوں نمبروں کے ساتھ ڈھولکی ہے نا آپ. تمہاری جہالت کو لوگ دیکھیں گے, سنیں گے. ارے بھائی صاحب, میرے جہالت تو کیا دیکھیں گے, جہالت تو آپ کر رہے ہو. آپ کو آخری خطبہ تک یاد نہیں ہے, آپ کیا ہم کو سکھا رہے ہو؟ آپ کو آخری خطبہ تک یاد نہیں, آپ پڑھے ہی نہیں ہے, کیونکہ جاہلیت ہے. اردو بولا یا واٹس ایپ یونیورسٹی کا عالم ہو آپ, جہاں واٹس ایپ میں جو آتا ہے پڑھ کے وہی خطبہ اور فتوا بتاتے رہتے ہو سب کو. یہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, لند ہے, فند ہے. پڑھے ہو قرآن کبھی دیکھے بھی ہو؟ ڈھولکی دیکھے ہو قرآن کبھی؟ جاہل کہیں کا, ہم کو سکھا رہا ہے اسلام. پڑھ لو, آخری خطبہ کام آ جائے زندگی میں. خود کو جنتی بتاتے ہو, تم کچھ بھی کر لو گے. تم ایک بات جان لو, خود کو جو جنتی بتا دیا نا, جو خود سے اپنا سرٹیفکیٹ دے دیا, وہ جہنم میں چلے گا, جہنم میں. اور جہنم میں پتہ ہی ہے ایک دن کتنے سالوں کا ہوتا ہے, یہ بھی نہیں پتا ہوگا. تم تو خود کو جنتی سمجھ لیے. جاؤ مر جاؤ, کیا کر رہے ہو دنیا میں؟ جنتی جاؤ, جنت میں جاؤ, جنت میں 70 حوروں کے ساتھ رہو. کیا کر رہے ہو دنیا میں تم؟ تو رہی تک تو چلو ایک چمچ بنا لیا رے جنتی کرے. ڈھولکی گالا فون نہیں کر. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.